Want to introduce yourself in Urdu? Today I'm going to teach you how to talk about hobbies and interests in Urdu. Simple, natural Urdu. I'll give you sample sentences and a short conversation with my friend in the end as well. Let's get right into it. Hello everyone, this is Sarah from Learn Urdu with Sarah. I teach Urdu as a second language on this channel. If you're new to this channel, hello, welcome. I hope you learn a lot from my videos. So today I'll teach you how to talk about your hobbies, how to ask someone about their interest, and how to answer naturally. By the end of this lesson, you'll be able to name common hobbies, say what you like, ask about their hobbies, and talk about the routine activities in Urdu. So the first sentence structure is मुझे dash पसंद है. मुझे dash पसंद है. So in this blank space, you can put a verb, an infinitive verb. मुझे means I, पसंद means like, है means is. So basically this sentence means I like or it is appealing to me. To me is मुझे. Pasand is like. It is appealing to me. It's liked by me. मुझे blank pasand hai. So in the blank you'll put a verb, whatever you want to, like whatever you enjoy, whatever you like doing. So for example, if you like watching movies, to watch is the infinitive verb for this is देखना. देखना. So you'll put it in the blank. मुझे देखना पसंद है. मुझे मूवीज़ देखना पसंद है. मुझे मूवीज़ देखना पसंद है. मुझे मूवीज़ देखना पसंद है. I like to watch movies. So here infinitive verb is placed. To watch is देखना. So I'll just put an infinitive verb in the blank space. मुझे मूवीज़ देखना पसंद है. मुझे पकाना पसंद है. I like to cook. मुझे पकाना पसंद है. मुझे पकाना पसंद है. I like to read. Do you know what the verb is to read? To read is पढ़ना. पढ़ना. So मुझे पढ़ना पसंद है. मुझे किताबें पढ़ना पसंद है. मुझे किताबें पढ़ना पसंद है. I like to read books. मुझे किताबें पढ़ना पसंद है. I like to read books. मुझे मैगज़ीन्स पढ़ना पसंद है. मुझे जासूसी नॉवेल्स पढ़ना पसंद है. जासूसी नॉवेल्स means suspense novels. मुझे जासूसी नॉवेल्स पढ़ना पसंद है. When I was a kid, I used to love adventure books and just suspense books. So this is what I would say. So nowadays, colloquially, a lot of people just say English words, so you can hear people saying मुझे thriller पढ़ना पसंद है. मुझे horror books पढ़ना पसंद है. So we kind of mix English and Urdu a lot in Pakistan. मुझे सफ़र करना पसंद है. सफ़र is travel. सफ़र करना is to travel. Because sometimes traveling is suffering. I guess that's how I remember this verb. So सफ़र करना is to travel. मुझे सफ़र करना पसंद है. मुझे मौसीकी सुनना पसंद है. मुझे मौसीकी सुनना पसंद है. मौसीकी is music. क्या आपको मौसीकी सुनना पसंद है? क्या आपको मौसीकी सुनना पसंद है? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. मुझे पेंटिंग करना पसंद है. मुझे पेंटिंग करना पसंद है. I like to paint. मुझे पेंटिंग करना पसंद है. मुझे बागबानी करना पसंद है. बागबानी is gardening. मुझे बागबानी करना पसंद है. मुझे बागबानी करना पसंद है. आजकल मेरे पास बाग नहीं है, मगर मुझे भी बागबानी करने का शौक़ है. शायद मैं बागबानी करूँगी मुस्तक़बिल में. मुस्तक़बिल is future. So the next sentence is मुझे dash or blank में मज़ा आता है. मुझे blank में मज़ा आता है. So this is a very colloquial way of saying. मुझे means to me. May means in. मज़ा आता है. Fun comes to me. Basically what it means is I have fun in. I enjoy
doing this. मुझे dash में मज़ा आता है. So in the blank space, you will put an infinitive verb. So for example, let's use देखना as an example again because we have already studied this. So मुझे देखने में मज़ा आता है. मुझे देखने में मज़ा आता है. Now you might be wondering, why is it देखने and not देखना? देखना is an infinitive verb. Why it's changing into देखने? So basically, any verb or anything that comes before a postposition go through an oblique case. So देखने is an oblique form of the verb. The R endings decline in A endings. So देखने. So देखना changes into देखने. मुझे देखने में मज़ा आता है. I have fun in watching. मुझे देखने में मज़ा आता है. मुझे मूवीज़ देखने में मज़ा आता है. मुझे रक्स करने में मज़ा आता है. रक्स करना is to dance. Another word is मुझे नाचने में मज़ा आता है. नाचना is also to dance. मुझे नाचने में मज़ा आता है. You can also use the English word like dance and put करना after it. मुझे डांस करने में मज़ा आता है. This is also quite colloquial and I aim to teach colloquial Urdu that is used in everyday life in Pakistan and India. So मुझे डांस करने में मज़ा आता है. मुझे खाना पकाने में मज़ा आता है. मुझे खाना पकाने में बहुत मज़ा आता है. मुझे खाना पकाने में मज़ा आता है. मुझे किताबें पढ़ने में मज़ा आता है. उसको किताबें पढ़ने में मज़ा आता है. He likes to read books. उसको फोटोग्राफी, उसको तस्वीरें खींचने में मज़ा आता है. उसको तस्वीरें खींचने में मज़ा आता है. तस्वीरें खींचना is to take photographs. You can also say उसे फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है. उसे फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है. उसे and उसको is interchangeable. So उसको और उससे फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है. Nowadays, as we have become adults, most of the people would say मुझे सोने में मज़ा आता है. मुझे सोने में मज़ा आता है. I enjoy sleeping. Is that the case with you? It's certainly the case with me. I just cherish sleep so much. आपको किस में मज़ा आता है? आपको किस चीज़ में मज़ा आता है? Like, what thing do you have fun in? आपको किस चीज़ में मज़ा आता है? आपको किस चीज़ में मज़ा आता है? The way to say this question is आपको क्या करने में मज़ा आता है? आपको क्या करने में मज़ा आता है? आपको क्या करने में मज़ा आता है? What do you enjoy doing? आपको क्या करने में मज़ा आता है? Okay, so I will teach you one more sentence structure, although there are so many other ways of talking about your hobbies and interests. So this sentence structure is मुझे डैश का शौक़ है. मुझे डैश का शौक़ है. मुझे डैश का शौक़ है. I have interest of this. शौक़ is an interest. So मुझे डैश का शौक़ है. In the blank space, you would put or you will put an infinitive verb, oblique infinitive verb. मुझे पढ़ने का शौक़ है. मुझे पढ़ने का शौक़ है. I have interest of reading. मुझे पढ़ने का शौक़ है. मुझे सोने का शौक़ है. I like to sleep. मुझे सोने का शौक़ है. मुझे सोने का शौक़ है. मुझे बागबानी करने का शौक़ है. मुझे बागबानी करने का शौक़ है. मुझे बेकिंग करने का शौक़ है. मुझे बेकिंग करने का शौक़ है. I like to bake. मुझे बेकिंग करने का शौक़ है. मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है. मुझे सिक्के जमा करने का शौक़ है. सिक्के is coins. So मुझे सिक्के जमा करने का शौक़ है. जमा करना is to gather or to collect. So मुझे सिक्के जमा करने का शौक़ है. I like to gather coins. मुझे सिक्के जमा करने का शौक़ है. आपके क्या शौक़ हैं? आपके क्या शौक़ हैं? What are your interests? आपके क्या शौक़ हैं? Your interests are what? आपके क्या शौक़ हैं?
आपके क्या शौक़ हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे ज़बानें सीखने का शौक़ है। क्या आपको ज़बानें सीखने का शौक़ है? ज़बानें इज़ लैंग्वेजेस। मुझे ज़बानें सीखने का शौक़ है। सीखना इज़ टू लर्न। मुझे ज़बानें सीखने का शौक़ है। मुझे ज़बानें सीखने का शौक़ है। मुझे ख़रीदारी करने का शौक़ है। मुझे शॉपिंग करने का शौक़ है। ख़रीदारी करना इज़ टू शॉप एंड शॉपिंग करना इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन वर्ब। मुझे शॉपिंग करने का शौक़ है। आई लाइक टू डू शॉपिंग। मुझे शॉपिंग करने का शौक़ है। उसको वर्जिश करने का शौक़ है। उसको वर्जिश करने का शौक़ है। वर्जिश करना इज़ टू एक्सरसाइज। यू कैन ऑल्सो से एक्सरसाइज करने का शौक़ है एज वेल। मुझे और उसको वर्जिश करने का शौक़ है। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट अ नेम, you just can say Maryam. Maryam is a name of a person and you have to mark her the name with go. So Maryam को शॉपिंग करने का शौक़ है। मरियम को शॉपिंग करने का शौक़ है। मरियम लाइक्स टू डू शॉपिंग। मरियम को शॉपिंग करने का शौक़ है। अली को शॉपिंग करने का शौक़ नहीं है। अली को शॉपिंग करने का शौक़ नहीं है। अली को शॉपिंग करने का शौक़ नहीं है। I know it's a mouthful. I know it can be complicated for beginner level students, but just keep practicing and you will get there. Just keep practicing. मुझे गाने का शौक़ है। गाने का शौक़ है। गाना is to sing. मुझे गाना गाने का शौक़ है। मुझे गाना गाने का शौक़ है। I like to sing songs. गाना is songs and गाने is to sing. मुझे गाना गाने का शौक़ है। मुझे गाना गाने का शौक़ है और मुझे सॉन्ग्स गाने का शौक़ है। आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स। मुझे गाना गाने का शौक़ है। मेरे दोस्त को गाना गाने का शौक़ है। मेरे दोस्त को गाना गाने का शौक़ है। माई फ्रेंड लाइक्स टू सिंग। मेरे दोस्त को गाना गाने का शौक़ है। मुझे शायरी करने का शौक़ है। मुझे शायरी करने का शौक़ है। आई लाइक टू राइट पोइट्री और टू डू पोइट्री। मुझे शायरी करने का शौक़ है। मेरी दोस्त को शायरी करने का शौक़ है। मेरी दोस्त को मीन्स माई फ्रेंड लाइक्स टू डू शायरी। आपको क्या शौक़ है? आपको क्या शौक़ है? मेरे बॉयफ्रेंड को पियानो बजाने का शौक़ है। मेरे बॉयफ्रेंड को पियानो बजाने का शौक़ है। पियानो बजाना इज़ टू प्ले अ पियानो। माई बॉयफ्रेंड लाइक्स टू प्ले पियानो। मेरे बॉयफ्रेंड को पियानो बजाने का शौक़ है। बजाना इज़ टू प्ले बट ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। मेरे बॉयफ्रेंड को और मेरे शौहर को गिटार बजाने का शौक़ है। मुझे रेस्टोरेंट जाने का शौक़ है। मुझे रेस्टोरेंट जाने का शौक़ है। आपको रेस्टोरेंट जाने का शौक़ है? आपको रेस्टोरेंट जाने का शौक़ है? By just changing the tone and intonation of the sentence, you can make it interrogative. So, आपको पियानो बजाने का शौक़ है? Do you like playing piano? To make it more emphatic, you say, क्या आपको पियानो बजाने का शौक़ है? क्या आपको पियानो बजाने का शौक़ है? So I'll stop it here. But let me know if you have understood it and if you liked it. Just let me know in the comment section. So I'll put some verbs. You can see them on the screen. And what you can do is you can make these kind of sentences in the comment sections using these verbs. If you're interested in real life conversation, I can ask my friend to talk about hobbies and interests. Let me know in the comment section if that is something you like and want on this channel. If you like a PDF file or transcript of this video, you can become a patron. Have a nice day and I'll see you later. Goodbye.